السلام علیکم ناظرین، میں ریاض نور میو اور آپ دیکھ رہا ہوں رہبر میوات ایچ ڈی نیوز۔ اور کیش چودھری صاحب کئی تعارف کو محتاج نہ ہے، ہند و پاک کے اندر آپ بہت اچھے طریقہ سے جانو ان کا کام سو، خاص طور پہ جو ان کی لکھی ہوئی تمدن میوات کتاب ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں میں میو بچہ پیدا ہون سے لے کے اور مرن تک کا وہاں رسم و رواجات درج ہیں۔ ان کا جو رائٹر ہیں کیش صاحب، بڑی محنت سے کتاب لکھی، تقریباً وہ بتاوے ہیں کہ کچھ 40 سال کے اندر 40 سال کی محنت سے بعد وہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی ہی، اور انہی کا لکھا ہوا جو وہ نظم ہے، خاص طور پہ او دیس سو آمن والا بتاوا دیس کی کوئی بات سنا، وہ میں نے گائی آپ دوستوں کے سامنے پہنچی اور آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کری۔ واسو بعد رضا فاطمہ ریاض نور نے جو ترانہ ریکارڈ کروایو یا کہ جگ میں اونچی شان میرو پاکستان مہان، ان سب کا رائٹر کیش چودھری صاحب، آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ 11 فروری 1966 میں ان کی شادی ہوئی، رشتہ ازواج میں وہ منسلک ہوا، تو 11 فروری ان کی جو ہے شادی کی سالگرہ کو دن ہے، میں ان کے پہ حاضر ہوئے ہوں۔ ان کی جو شادی کے حوالے سے یاد ہیں وہ آپ دوستوں تک میں پہنچانا چاہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میرا دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے آپ لو شادی کی سالگرہ کی بے حد مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور سب خیریت؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ اور ماں جی آپ ٹھیک ہو نا؟ بالکل۔ تو 1966 میں آپ کی شادی ہوئی اور آج ہے سن 2021، کافی سفر آپ لوگوں نے طے کرو، تو یا کے ساتھ آپ کے یا رشتہ کی جو کھٹی مٹی یاد ہیں وہ ہمارا جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے سامنے آپ ضرور شیئر کرو کہ ان دنوں میں رشتہ کیسے ہو گئے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگوں نے 12 پال اور 13 پلاکڑوں ایک دائرہ بنایا ہو کہ ایک جو ہے نا پال ایک کو دیوے دوسرا سے لیوے، اور جہاں دیوے ہاں ہم سے لیوے نہ نو کہے ہاں کہ یہ ہمارے سارے بھانجی بھنواسی ہیں، اور اگر کوئی ایسے غلطی کر بھی جاوے ہو تو اس اچیڑ پانی کہوے ہاں، اور ان کی یقین ہو کہ کہہ تو چھوڑا نہ بس سے کہ چھوڑے نہ بس سے، اور ایسے ہوئے ہو کہ اگر کوئی آدمی زبردست دیوے دیو تو وہ یا چھوڑے مر جاؤ یا چھوڑی مر جاؤ، یعنی ان لوگوں کو اتنا سخت عقیدہ ہو۔ اب آج کل تو یہ بہن بھائی آپس میں کر رہا ہوں تو ماما خون کے تمیز رہے ہوں، بابا زمانے میں ماما پھوپھن کی بڑی قدر ہی ایسے سگا بہن بھائی کی طرح رہ گیا ہے۔ تو الحمدللہ میری جو شادی ہوئی تو وہ بھی پرانے رسموں کے حساب سے ہوئی ہے۔ میری جو ہے نا بیوی ہے وہ آکرا گاؤں کی ہے، ماؤناوت گوت کی، اور میری جو ہے چھکلوت گوت ہے۔ تو میں اپنی شادی کا ایک بہت خوبصورت لطیفہ یاد ہے کہ ہمارے جب بیاہ لکھے ہا بیٹی والا تو وہ لکھے ہا کہ 5 بھائی عزت کے ساتھ آ جاؤ، اور 5 بھائی کو آگے رہے کھل جتنا توجہ کرے اتنا آ جاؤ، کوئی روک ٹوک نہ ہے۔ تو ہم جب گیا تو آج کل ٹیکسی کا رواج ہے، تو اتفاق سے ٹیکسی میں ہم 5 ہی آدمی ہیں، ایک ڈرائیور، ایک میں نوسا، ایک میرے ساتھ میرا باپ اور 2 میرا تاؤ۔ تو میرے ماما کا چھوڑو جو بچے والی ہو جانے کروائے ہو بیاہ، وہ آئے تو آ کے کہنے لگو کہ جو ہے نا پھوپھا برات کہاں ہے؟ تو میں شرارت سوچی، میں نے بس کہا کہ بھائی ممبل تینے جو ہے نا 5 آدمی کے کہی تو ہم 5 ہی آدمی ہیں، دیکھ لے یہ جو ہے بلکہ 4 ہی ہیں، 5 ڈرائیور ہی، وہ رو پڑو۔ وہ کہنے لگے یہ تم نے کہا کرو، یہ تو باہر دیکھ رہے کیسے برات ہے۔ تو ہمارا تاؤ جو ہے نا وہ بھی موسم گھنوں شرارتی، وہ کہنے لگے لالا ممبل جب تم لکھی 5 آدمی کی تو 5 ہی آ گئے ہم تو، اب تو کہتے ڈرائیور تار دیں اور 4 رہ جائیں گے۔ تو آپ پتہ ہو یا بات کو کہ یا بس جان بوجھ کے بس اب انہیں ہم نے مذاق کر بات تو وہ بیچاروں کو سچی سمجھ لی بات۔ پھر تھوڑی دیر بعد برات پہنچ گئی، باجا باجا گاجا صحیح پھر انہوں نے کہا میں تو جانوں سچ بات 5 میں ویسے ایسے لکھا آج بھی جب وہ بات مجھے بیچارے کب تک یاد ہے کتنا بھوڑا آدمی انہوں نے سمجھا کہ واقعی 5 آدمی آیا۔ تو پھر الحمدللہ ویسے ہی جو ہے ہو گئے ہوں، برات لے گئی، جیسے ہمارا اگوائی کے ہوا پیشوائی کے ہوا، تو ہم نے جو ہے نا 12 جو ہے نا ان سے کہے ہاتھ میں لینا ہوا بیٹی والا
जब तक बेटी वाला ले ना हुआ गाँव में बारात ना घुस बाहर खड़ी रह गई। सही तो बुजुर्ग आवे हूँ लेट एक्सचेंज हो भेंट देवे बाड़ी देवे बेटी वालों भेंट देवे हो फिर बेटा वालों कनाई मेरे से सट्टाम को देवे फिर नो जाके बारात थाली पे बिठा दी जावे फिर निकाह हो फिर खाना पीना हो। और ज़माने में 3 दिन जो है ना बारात ठहरे ही, लेकिन खान बहादुर ने बेचारा ने रीत चलाई कि बस दिन के दिन जो है बारात ठहरे। सही। और हम जो है गया तो पर निकाह हो ब्याह हो और रोटी टोप खाया शाम को रात हो विदा हो गया। बड़ी दफ़ा की बात थी कि जब हम वापस जा रहा तो हल्के हल्के बारिश शुरू हो गई। सही। और जाते जाते गांव में जो है बारिश शुरू हो। और फिर ऐसे इत्तेफाक हो कि जब भी जो यह हम लेने जाता ये हमारा गांव में आते तो बारिश ज़रूर होती। अच्छा। तो या को नाम ही हमने बरखा रख दी। ये जब आवे है तो बरखा लेकर आवे है। तो अब भी ऐसे हो गए जब हर गाँव से है ना अगर बारिश ना हो तो बादल जरूर हुआ। सही। अच्छा, आपकी जो बारात है वो सुरसिंग से चढ़ी? हाँ जी, सुरसिंग से। और ये माँ जी कौन से गांव के रहने? पढ़ाना चक 45। साथ ही है ये तो? मेरा गांव का नाम सुरसिंग चक 53 और इनका गांव का नाम पढ़ाना चक 45। तो औलाद की जो नेमत है अल्लाह पाक ने आप कितना बेटा बेटियों से नवाजा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटा हैं और 6 बेटी हैं। आपने इन बच्चे इनको थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ नाज़रीन के सामने करा दो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना मास्टर करा के और MA BEd हूँ, LLB हूँ, CLSC हूँ। तो जो है ना मेरी बेटी जो हैं उन्हें माशाल्लाह सब का सब MA BEd हैं और उन्होंने कॉलेज में और स्कूल में पढ़ाया भी है। और उन्हें मैं राइटर हूँ तो उन्हें भी शौक़ है राइटिंग को, वो लिखा भी हाँ, शायरी भी करा हाँ। और अल्लाह का एहसान है कि मैंने जो है और मेरी बीवी ने उम्रा भी करो है, हज भी करो है। तो मेरी बीवी की बड़ी तमन्ना है कि मैं अपनी बेटी को हज करवाऊँ। तो यानी पिछले साल जो है अपनी बेटी को सबल को उम्रा करवाया, हज तो ना करवा सके क्योंकि हज को टाइम निकल चुका हो। तो ये सारे के सारी बेटी माशाल्लाह उम्रा करके आई हैं और जो है ना रह के आई महीना भर तक जो है ना मक्का और मदीना में और बड़ी खूबसूरत चाँद लेके आई हैं। मेरी बेटी खावर जो है ना वह ने अपना तासुरात लिखा है अखबार जंग में जी। तो वो बहुत खूबसूरत मजमून है, तो बेहतरीन जो है ना वो मजमून मैंने पढ़ो तो मेरी याद ताज़ा हो फिर मेरे आंसू निकल आया कि देखो कैसी अजीम अजीम हस्ती इनका घर पे हम रह के आया हाँ, कैसी जगह जो है ना रह के आया हाँ। और अल्लाह ने कैसे सजा दी मेरी औलाद को भी बहू को भी कि हमने वो सब कैसे जगह कर दी। तो अल्लाह का एहसान है। मैं बेटी बेटा बड़ा सुखी हूँ। मेरा बेटा तो खैर यह अदब के शनास ना है, उन्हें तो कोई जो है ना पढ़ने लिखने का शौक़ ना है। बेटी मेरी सारी के सारी माशाल्लाह कलमकार हाँ, शायर हाँ, अदीब हाँ और जो है ना लिखा हाँ रिसालान में अखबार में। सही माशाल्लाह ज़बरदस्त। चौधरी साहब ने हल्का फुल्का तारुफ कराया शादी को भी, अपना बच्चे इनको भी तालीम काबिल। अच्छा, आपने एज ए शौहर क्योंकि बिरादरी में जो हिंदो पाक के अंदर लोग जाना हाँ कैसा हाँ भाई वो तो अदबी खिदमात का हवाले से जाना मैं बात के लिए जो इनकी मेहनत हैं काबिश हैं, लेकिन एज ए शौहर आपने ये कैसा पाया? सही है, सब कुछ सही है। बच्चा पाला हाँ, परवरिश करिए, कमाए हैं, घर में ला के दिए हो, आगे फिर बच्चान पे खर्च करो है। तो वह हम सोचना कि फुर्सत ना मिले, बच्चा स्कूल जा रहो, कॉलेज जा रहो, आ रहो है जा रहो है, मतलब इनकी वहाँ में घूम रहा और पातली फुर्सत कैसे मिली। 6-8 बच्चा पढ़ाना छोटी सी बात ना है, एकदम 4 कॉलेज में पढ़ा, 1 बेटा 3 बेटी। आपकी जब शादी हुई ही, जब आप जॉइंट फैमिली में रह गई यानी कि आपकी सास नंद वगैरह साथ रह गई, क्या चीज़ बोलूँगा कि शादी के फ़ौरन बाद है ना मैं यहीं लाहौर में हूँ मुलाजिम जब मेरी शादी हुई है और जो है ना चाला के फ़ौरन बाद ही जो है यहीं आ गई। तो जॉइंट फैमिली में मिलना तो मौका ना मिले चलो। और मैं अपनी जितनी कमाई लाया ना या को ला के एक हाथ में दे दो आज तक भी मुझे जो है ना ऐसा याद है क्या कि धावत जो है कसूर में प्यार ब्याह हुआ भाई, तो वो आई मेरे से मिलन लोग हूँ सुल्तानपुर में रह गया। तो मैं आया बहुत पतना हुआ है पड़ा हूँ, मैंने सोचा एक पैसे दे, मैंने एक गोश्त के लिए जब 1.5 रुपये से गोश्त पे बकरा को और ये 12 से भी कोई गाय को गोश्त। तो वो भाभी मेरी कहने लगी या कि ओ हो हम लोग जता रहो पैसे या पर वहाँ
तो मैंने कही मैं जताना क्या बच्चों थोड़ा सा मैंने कि यस पूछ ले, मैंने जो है मैं तो किराए पे जो है ना लेके यस जाऊँ, और अब तक भी यही हाल है। क्या कहा कि मेरा हाथ फैल रहा है कि हम फल जगह जाना। हाँ, जॉइंट फैमिली की बात ही है ना, अब मैं बिना अकेले बाप ही हूँ, मेरा माशाल्लाह 6 भाई आ दो वहाँ भाभी, इतनी बड़ी कबीलदारी, तो रहने से वहाँ की भी कभी कुलबा में कैसे रहना, ऐसे फिर भूल रही कि अपने भी क्या करता हुआ 4-5 तो आवे जावे, ईद त्यौहार भी छुट्टी में भी जावे, तो बस ऐसे ही कहले कि मेहमान जैसे जावे तो चल रहा सिलसिलो कोशिशों को गुजार हूँ। मैं अपने बच्चों से भी कहूँ कि मोल यानी कोई टेंशन ना दी, खास कर या घर का मामला में, कि यानी घर को कारोबार चला रखो, कसलो देना है कसलो ना देना है, ननद दौराने ये तो मैं बिल्कुल रोटी खाऊँ ऐश करूँ। यहाँ ने सारी टेंशन ले रखी है, एक खर्च जो ले तो ले वही, लेकिन बेचारे के जो है एक जान फिरी रहे, कहाँ करना कहाँ खर्च चलाना बहुत आसान बात है। जी, बहुत ज़िम्मेदारी काम है। मेरी जो शादी हुई है ना, जब मेरे 130 रुपये तनख्वाह ही, तो अब माशाल्लाह जो है लखन में मेरी पेंशन है जी, लेकिन खर्च भी लखन के हिसाब से। सही बात है जी। अब 6-7 बेटियाँ अब सारी कोई आ रही है, कोई जाने है, कह भात बनो, कह छोचक भरनो, तो ये यहाँ की हिम्मत है, मेरे मूल टेंशन आए आपकी संभाल दी। सही। अच्छा, ये जो आपकी शादी की सालगिरह है 11 फरवरी जो आवे, तो ये आप शुरू अब तक हर साल ही मनाओ? हाँ, बच्चान की मनावा। अच्छा, बच्चान की मनावा अपनी ना नमाज़ान हम अपने घरे बड़ी बात ना, वैसे अपने घरे बनावा मिलामा। हमारे जो है ना ये एक पंजाबी का मुहावरा है कि जो है ना 13 दरवाजे 17 मेले, घर जावा में केड़े वेले, कि लाहौर शहर का 13 दरवाज़ा हाँ, या मैं 17 मेला लगा हाँ, तो मोल घर वाले के टाइम में कोई ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 बच्चा हैं, अभी जो है ना फिर आगे इनके 21 बच्चा इनका बच्चा इनका, तो कोई ना कोई ऐसे जो है ना आए रहे। हम फंक्शन घर में बनावा, हम ऐसा एहतमाम है ऑर्डर ना करा कि होटल में जाओ इनमें जाओ, घर में केक बनाना, ये बनाना, खाना तरह का पकवान बनाना, वो घर में पकावा, और 1 महीना में कई साल के रह जाऊँ। मैं मुख्तसर से तारुफ कराते चलूँ कि इनकी जो गोत है वो छिरकलोत हैं, और इनको जो गांव है वो गंगवाणी, इंडिया बड़ी मेवात में, और पाकिस्तान में ये सुरसिंग में आया है। और छिरकलोत गोत जो है वो कई तारुफ की मोहताज न है। आप जानो हो बाहर कोटिया जो हो छिरकलोत में हो, जो कि बादशाह अकबर का महल से हुआ हमारी और बहाने में लेके आवे हैं बाहिफाजत, तो ये गोत जो है कई तारुफ को मोहताज न है। और अदब का हवाला सो भी इनका जो मुकम्मल ख़ानदान है, इनका जो बड़ा भाई शेर चौधरी साहब के अपना सिकंदर सोहराब साहब, कैश चौधरी बसाद खुद, और इनकी आगे से जो औलाद है माशाल्लाह जो बेटी हैं ख़ास तौर पे, तो वो भी अदब का हवाला से अभी तक काम कर रही हैं। तो सैकड़े हाँ मेरे पे जो रखा हाँ छपा ना हाँ, और छपवाने के मोल नौबत हमारे ना है कि माशाल्लाह मैंने 8 बच्चा पाला हाँ, सारा का सारा यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा हाँ, फिर इसकी शादी करी है मैंने, एक घर मैंने बनाए हुए हैं जी। तो ऐसे जो है ना मोल टाइम ना मिलो कि मैं अपनी किताबें छपवा तो मेरी किताब ये सारी की सारी यही है। अल्लामा इकबाल जब ने सर को खिताब जो नहीं अंग्रेज़न ने, तो वहाँ ने कहा कि मेरा उस्ताद मीर हसन को भी दो, तो वह कहने लगा कि भाई जो है ना कोई किताब तो लिखी ना है, तो यार कैसे देवा। वहाँ ने कहा कि मैं एक किताब जो हूँ, तो मेरी बेटी जो हाँ ये सारी के सारी मेरी किताब हाँ, ये माशाल्लाह इन्हें कलम संभाल रखो, लिख रही हैं, और अवार्ड भी उनको मिला हाँ। तो ये जो है हो चुकी हैं। मेरी सबसे खिदमत ये है कि मैंने अपने कौम को एक पढ़ी लिखी बेटी दी हाँ, और जो है ना सारी के सारी शायर हाँ, जो है ना अदीब हाँ, राइटर हाँ, तो ये अल्लाह को एहसान है, इनका शौक़ है। मैंने जो है ना इनके जब ये अभी मैट्रिक में ही, तो इनका रिश्ता आने लगा हाँ, मैं ना लेके हुए कहीं रिश्ता नहीं, बल्कि मेरे घर में लोग आए रिश्ते लेकर, तो इन्होंने मुझसे एक बात कही कि वो जो है ना रिश्ता तो हो जाएगा, हमने पढ़ लेने दे, कम अज़ कम इतना पढ़ लेने जितना आप पढ़ाओ। तो मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी करी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो प्राइवेट करा सारा ये MA B.Ed वगैरह, तो इन्होंने बाकायदा कॉलेज में रह के यूनिवर्सिटी में जो है ना रह के पढ़ो, फिर इनकी शादी पर खर्च करो। और अब माशाल्लाह वो कह कर ना हमारे कि भाई कुआरी तो खावे रोटी और ब्याही खावे बोटी, तो अब माशाल्लाह बोटी ने खा रही हैं। कहीं का जो है ननद के ब्याह है, कहीं का देवर को ब्याह है, कहीं का अपना बच्चा को छूचक है,
तो बस इनमें लगा रहा हूँ। असल में वो आप नहीं लिखी ना तमद्दन मेवात में भी कि हमारी मेव कौम की मशहूर कहावत है कि मेवात की जो बेटी हैं वो बूढ़ी हो जाए वहाँ पर उनको दान ना बूढ़ा हो। हाँ बिल्कुल। और ये मेव कौम तो जो है नाती नवासान तक भी बढ़ते हैं। तो ये अल्लाह के अता है कि अल्लाह ने दे रखा है इनके नसीबन को। हाँ जी। वरना जो है ना ऐसे में करीब माँ बाप में कुछ भी ना दूँ कि ये इनके माँ के ख्वाहिश इनका मुँह से निकलने से पहले पूरी करी। कोई ऐसी मेरी बेटी इनका हसत ना है कि इन्हें मुँह से कहे होए और मैंने पूरी ना करो है। और इनकी माँ को भी बराबर का हाथ है। आवे है ये कॉलेज से तो कि जी अब्बू अम्मी कल फला फंक्शन है और फला ड्रेस चाहिए, भाई वक्त जावे ही मार्केट लेके आवे ही रात को सी में ही तैयार करे ही और उनको दे यानी ऐसा हमने रखे हम कहा करा हर घर किताब चाहिए जो किताब माशाल्लाह वो शौक़ है किताबन को और कुछ हो सही। और मैं अपना देखने वाले नाज़रीन से यही कहना चाहूँ कि हमारी कौम के अंदर हीरों की कोई कमी नहीं है, इनकी कदर कर ले। और यह बात मैं ख़ास तौर पे उनसे कह रहा हूँ कि जिन्हें ये प्लेटफार्म बना रखा है, क्यों तुम इंतज़ार कर रहे हो कि ये मरेंगे तो हम कदर करें। जीते जी तुमने इनकी मेहनत क्यों नज़र ना आए। कहा इज़्ज़त करवाने के लिए मरना ज़रूरी है, ऐसा ना होना चाहिए। हम उन लोगन पर याद रफ्तगा मनावा हाँ कि जो दुनिया में ना हाँ, हम याद ज़िंदा क्यों ना मना। जब तक हम याद ज़िंदा ना मनाएंगा तब तक हमारी कौम के अंदर हीरो ना पैदा हो सके। हीरो हाँ, ये बात ना है कि हमारी कौम के अंदर हीरो ना है, लेकिन हमारी नई नस्लन तक उनकी काविश ना पहुंच रही। और वो प्लेटफार्म हाँ मौजूद अब तो ख़ास तौर पे जब से सोशल मीडिया आया हो। मेवात के अंदर ऐसा ऐसा लड़का हाँ कि जिनका यूट्यूब चैनल पे 5-5 लाख लोग ज्वाइन कर पड़ा, 5-5 लाख लोग। किताब है, अखबार है, चंद तादाद में छपे, 1000 की तादाद में, 2000 की तादाद में। लेकिन जो हम वीडियो के हवाले से जो काम कर रहा हैं ये कई लाख लोगन तक पहुँचे हैं। और देश सो आवन वाला बतावा देश की कोई बात सुना, जो एक ऐसी नज़मी जो कि तकरीबन 55-60 साल पहले लिखी है। तमद्दन मेवात किताब छपी 500 की तादाद में। अब 500 किताब लाखों लोगों की नुमाइंदगी ना कर सके, लाखों लोगों तक वो ना पहुँच सके। लेकिन वाक़े अंदर बहुत से ऐसा वाक़या दर्ज हैं। मेव खा घोड़चली को, हसना को सोसिंग को, चाहल का चकमल को, पलान खेड़ा की बेटी को, बेशुमार वाक़े अंदर से हम ड्रामा बना सके हैं, हम वीडियोस बना सके हैं, हम उनके ऊपर फिल्म बना सके हैं। तो हमारी यूँ काम है, ख़ास तौर पे ये यूट्यूबर हैं। मैं यह बात यूट्यूबर से कहना चाहूँ, जैसे हक्कू सिंगारिया है इंडिया के अंदर, सगीर भाई है, शकील भाई है, एहसान मेवाती है, असगर तूफ़ानी है और अरशद बीसरू है। आप सब दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँ कि अपनी जो मेवात का हीरोज़ हैं उन्हें नई नस्लन तक पहुँचाने का बेड़ा उठा लो। और या में हमारे कुछ भी ना खर्च हो। आज सिख प्रोटेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, क्यों? यानी कि उनका प्रोटेस्ट में जान है, क्योंकि वो अपना फ़नकार की कदर कर रहा और फ़नकार उनकी आवाज़ बन रहा। कौम का जो फ़नकार रहा वो सिफारकार रहा। हमने चाहिए कि हम इनकी कदर कर लें। आज हिंदू पाक के अंदर कोई भी एक मेव ऐसा नज़र ना हारो कि जाकी पहचान पूरी दुनिया में हो गई। या में ये मसलो ना है कि हमारी कौम के अंदर हीरो ना, हमारी कौम के अंदर हीरो हाँ, लेकिन हम उन लोगों प्लेटफार्म में ना दे पा रहा। या में नुकसान उन हीरों को ना है, नुकसान है हमारी कौम को। मिसाल के तौर पे सर ने तकरीबन अपनी सारी ज़िंदगी या काम पे लगा दी, सारी ज़िंदगी। और अभी भी मेरी बात हो रही या इंटरव्यू से पहले कि वो अपना अभी भी ढलता हाथन सो लिखना को काम कर रहा। उनने इतनी मोटी कई हज़ार सफ़ात की किताब लिख रखी हैं। वो क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, या कौम के मारे कर रहा हूँ। और हमारी कौम में यूँ बात ना चाहिए कि उनकी जो मेहनत है वो लोगों तक पहुँचाएँ। काइन कंजूसी बरतो, कहा तहर बिगड़ जाए। ये यकीन करियो, मैं समझूँ कि ये दुखी दिल की बात है कि हम क्यों अपना हीरोज़ की कदर ना कर। अगर हमने चाहिए कि हमारी कौम आगे पहुँचे और हमारी कौम का बच्चा हनी सिंह अपना आइडियल ना माना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख के अपना हीरोज़ ना माना, तो हमने चाहिए कि हम अपने हीरोज़ की पहचान अपनी नई नस्ल में करा दें। बहुत शुक्रिया। देखते रहो रहबर मेवात HD न्यूज़ और रियाज नो TV।